تک آئی ہے اور ہم نے اپنے انداز میں اپنی طاقت کے مطابق جس طرح ہمیں بتایا گیا سمجھایا گیا ہم نے اس ڈیوٹی کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، وہی ڈیوٹی ہم آپ لوگوں کو منتقل کرتے آ رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ ڈیوٹی نعمت عظمیٰ ہے، نعمت عظمیٰ ہے اور یہ اتنا بڑا موقع ہوتا ہے کہ جس کی دعوت کا آپ اہتمام کرنے جا رہے ہو اس کے اہتمام میں جو کام بھی آپ کر رہے ہو، جو بھی آپ کے حصے میں آ رہا ہے، کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ کام ہمارے حصے میں آ جائے، لیکن جو بھی کام حصے میں آ رہا ہے یاد رکھیں کہ اس میں آپ کی نیت اگر خالص ہوگی تو اس کا ثمر آپ کو اتنا بلند ملے گا جو آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ راستہ ہی ایسا ہے، یہ منزل ہی ایسی ہے، یہ مہربانی کا جہان ہی ایسا ہے کہ اس میں نیت کے ساتھ جب بندہ داخل ہوتا ہے تو پھر وہ کمالات جو ہے وہ نصیب ہوتے ہیں کہ جس کو سن کر اور پڑھ کر آج بھی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ پیشوا کی آستانے بھی ڈیوٹی دینے والے اور پیشوا کی کے بنائے ہوئے نظام کی ڈیوٹی دینے والے اس ڈیوٹیوں کو دے کر کس کس مقام تک پہنچے ہیں، اس کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ ہمارے پاس بھی موقع اللہ کے رحم سے آتا ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ موقع دیتی ہے کہ تاکہ ہم بھی رسول اللہ کے بنائے ہوئے کسی نظام سے بھی محروم نہ رہیں، اور اگر یہ بھی نظام رسول خدا ہی کا بنایا ہوا ہے اور اس نظام کے بدلے میں بھی وہی مہربانیاں ہمارا مقدر ہے جو کل صحابہ کرام کا مقدر تھی، وہی مہربانیاں ہمارا بھی مقدر ہے جو شہنشاہوں کے خلفاء کا مقدر تھی اور شہنشاہوں کا مقدر تھی، وہی مہربانیاں ہمارا بھی مقدر ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنے آپ کو اسی لگن، اسی شوق اور اسی جذبے کے ساتھ مکمل طور پر اپنے آپ کو حاضر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر اور باطن کا جو معاملہ ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ اور یاد رہے کہ دو واقعات ہمارے لیے بہت بڑی دلیل ہے اس بات پر، نہ سمجھے تو کوئی نہ سمجھے، خیر یہ کوئی بات نہیں، لیکن اللہ سے سمجھ مانگو کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ سے سمجھ مانگو کہ اللہ سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ خدا کی ذات کے نظام کے تحت حیثیت انسان نہیں، خدا کی ذات کے بنائے ہوئے نظام کے تحت، رسول اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت جس کو وہ اس نظام کے لیے اپنی وراثت میں سے حصہ دیتا ہے اس کو بھی کئی شان کا مالک بنا دیتا ہے، اور جب کئی شانوں کا کسی کو مالک بناتا ہے تو اس کی شانوں کو کئی پردوں میں چھپا دیتا ہے، تو جب وہ شانیں کئی پردوں میں چھپی ہوتی ہیں تو وہ کیسے ہر کسی پر ظاہر ہو جائیں گے، کیسے ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ بات کیا ہے، کیسے ہر کسی کو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ جب اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے حاضر کرو گے، جب اپنے اندر سمجھنے کا شعور پیدا کرو گے، جب سمجھنے کی حب پیدا کرو گے، شوق پیدا کرو گے اور وہ ڈیوٹیاں ادا کرو گے کہ جن کے طفیل جو ہے وہ سمجھ آ سکتی ہے، تو پھر بالیقین اللہ تعالیٰ وہ پردے ہٹاتا ہے، اور جب پردے ہٹاتا ہے تو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ بات ہے کیا۔ اور تبرکت دوستوں کی بارگاہ میں دو واقعات پیش کر رہے ہیں کہ پہلا واقعہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مہربانی فرمائی جب طائف گئے سرکار اور لوگوں نے ہمارا لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم اثر کو لہو و لہان کر دیا، تو خدا کی ذات کو جلال آیا، بڑا خوبصورت نقطہ ہے لیکن اللہ جس کی سمجھ میں آ جائے، تو خدا کی ذات کو جلال آیا اور خدا کی ذات نے جلال میں جبرائیل علیہ السلام کو بلایا، حالانکہ جب خدا کی ذات کا جلال آتا تو پھر نہیں دیکھتا کسی کو، پھر جو اس کو خیال آتا اس نے وہ کرنا ہوتا ہے، اب جلال بھی آ گیا اور خیال بھی آ گیا، جلال بھی آ گیا اور خیال بھی آ گیا، جلال بھی آیا ہوا ہے اور خیال بھی آیا ہوا ہے، کیا خیال آیا ہوا ہے کہ غرق کر دوں ان کو، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، ان کو سب کو طائف والوں کو غرق کر دوں، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں، جلال بھی آیا ہوا اور خیال بھی آیا ہوا ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب سے جا کر پوچھو کہ کیا کرنا ہے۔ باطن جو کلی اختیار کا مالک ہے وہ ظاہر سے پوچھ رہا ہے کہ تیری کیا رائے ہے، میرا تو دل چاہ رہا ہے ان کو پیس دوں آپس میں، دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان سب کو پیس دوں، تو کیا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کھلا نہیں، ایسا نہ کرنا، یہ نہ سے ان کے آنے والے سے کوئی مان جائے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کرنا، خدا کی ذات کا جلال جمال میں تبدیل، یہ ہے ظاہر اور باطن کا تعلق، اور یہ ہے ظاہر اور باطن کی حقیقت جنہیں سمجھ آتی ہے۔ پھر
कलियर शरीफ में खुदा की ज़ात का जलाल अपने तमाम तर रानाइयों के साथ जलवागर है। और अलीमुल अब्दाल से कहा जा रहा है कि जाओ ये चिट्ठी लेकर मेरे शहर के पास जाओ। और उस चिट्ठी पर लिखा है कि बातन की तरफ से बार बार हुक्म आता है, बातन की तरफ से बार बार हुक्म आता है कि कलियर गर्द कर दो। बातन की तरफ से बार बार हुक्म आता है कि कलियर गर्द कर दो। आप क्या राय, आपकी क्या राय है? अब अंदाजा कर ले कि जब बातन जाहिर को जाहिर करने पे आता है ना, तो फिर बता देता है कि जो मेरी ज़ात की अहमियत है, जो मेरी ज़ात की हकीकत है, ये मुझसे जुदा नहीं है, ये उसी हकीकत का मज़हर है, ये उसी हकीकत का मालिक है। ये मैंने उसे इसी हकीकत का मज़हर बनाकर दुनिया में भेजा है। फिर वो खुद पर्दा उठाता, आशना कराता है। तो कहा जा रहा है कि बातन की तरफ से बार बार हुक्म आता है कि कलियर गर्द कर दो। आपकी क्या राय है? आप बाबा साहब इतना राजी हुए कि आपको रक्स हो गया, वजद हो गया और आप रक्स फरमाने लगे। और जब अफाका हुआ आपके ज़माना मुबारक से अल्फाज में अदा हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह आज वली हुआ। अब ये नुक्ता है कि आपने क्या फरमाया, लेकिन अल्फाज यही है अल्हम्दुलिल्लाह आज वली हुआ। ये चीज़ें हमारे लिए मशअल राह है। हमें मालूम होना चाहिए कि ज़ाहिर और बातिन का ताल्लुक़ क्या है आपस में, ज़ाहिर और बातिन की हकीकत क्या है। और आखिर में अपने शेख करीम का कौल आपके गोशगुजार करके, अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करके आज की जो ये महफिल है इसमें उसकी तैयारियों के हवाले से जो गुफ्तगू करनी है उसकी तरफ आएँगे। आखिरी बात आज की गुफ्तगू का निचोड़, एक दफ़ा बड़ी रहमत का मौका आया तो हुजूर की मौज थी, हम हुजूर की बारगाह में हाजिर थे। उस मौज में हमने हुजूर से सवाल कर दिया तो हुजूर मेहरबानी फरमाए कि यूँ तो बेशुमार मेहरबानियाँ हैं कि जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, जो पेशवा की ज़ात से अता होती है, बेशुमार है जिनको अहाते में ही नहीं लाया जा सकता। लेकिन हुजूर मेहरबानी ये फरमाए कि पेशवा जिस पर सबसे ज़्यादा राज़ी होता है उसे क्या देता है, जिस पर सबसे ज़्यादा राज़ी होता है उसे क्या देता है। मौज थी हुजूर की। आप फरमान लगे कि बेटा पेशवा जिस पर सबसे ज़्यादा राज़ी होता है उसे अपनी पहचान दे दो। क्यों कि ये सारी गुफ्तगू पहचान पे होती है कि ये कहाँ से चलती है और कहाँ तक जाती है और कहाँ से आती है और कहाँ तक आती है। सारा उस पहचान के सारा काम है कि उसे सारा समझा देता है कि यहाँ पर है तो भी वो है, यहाँ पर है तो भी वो है, यहाँ पर तो भी वो है। उसे बाकायदा दिखाता भी रहता है और समझाता भी रहता है। तो ये तसर्रुफ है हमारे शहंशाह का जिनकी हम दावत करने जा रहे हैं। और खुदा करे कि तमाम तर मसाइल, तमाम तर मामलात, तमाम तर माहौल के बावजूद अल्लाह की ज़ात हमें ये मौका दे रही हो कि हम फिर से अपने शहंशाह की दावत को नियतन शानदार अंदाज में मनाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारी मदद भी फरमाए और दस्तगिरी भी फरमाए। और जिस मकसद के लिए ये महफिल पाक हो रही है, जिस मकसद के लिए ये उर्स पाक जो है वो मुनक्कद किया जा रहा है, उसका खालिस्तन मकसद यही बात है जिसमें गुफ्तगू हो रही है और कोई मकसद नहीं। कि अल्लाह करे कि हमारी सोई हुई रूहें फिर जाग जाए, अल्लाह करे हमारे सोए मुकद्दर फिर जाग जाए, अल्लाह करे जो दूर है वो करीब हो जाए, अल्लाह करे जो करीब है वो और करीब हो जाए। खालिस्तान इस मकसद के लिए इस महफिलों के रूहानी महफिलों का जो तसर्रुफ है वो यही होता है कि रूहानी महफिलों में रूह की ग़िज़ा मिलती है और जिस लेवल की महफिलें होती है उस लेवल की ग़िज़ा होती है और जिस लेवल की भूख होती है उस लेवल की ग़िज़ा मालिक की तरफ से नसीब होती है। तो खुदा करे कि ये मौका आला तरीन है जो हमारे पास आया है, तो हमारी भूख भी जो है खूब से खूब तर हो, क्योंकि भूख होगी तो खुराक मिलेगी ना, और जैसी भूख होगी वैसे मिलेगी। तो हमारी भूख जो है ना, भूख वो हमारे जज्बात से नजर आएगी, हमारी भूख हमारे किरदार से नजर आएगी, हमारी भूख हमारे चलने से, फिरने से, उठने से, बैठने से, हमारे काम काजों से नजर आएगी कि हमें कितनी भूख है उस लम्हे की, कि हम जो दिन रात इन कामों में मगन लगे पड़े। इसकी वजह क्या है? इसलिए कि हम उस लम्हे के मुतलाची हैं कि इन सारे कामों के बदले में कोई ड्यूटी दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई दे रहा है, कोई दे रहा है। इन सारी ड्यूटियों के बदले में जिस नेमत उस्मा के तालिब हैं, खुदा करे कि उसका एक लम्हा ही हमें नसीब हो जाए। तो हम हमारा ईमान है कि वो एक लम्हा भी हमारी तकदीर जो है
वो बदल देगा। तो बहुत बड़ा मौका हमारे दरमियान आया चाहता है। आज 29 तारीख गुजर गई, सुबह 30 तारीख का सूरज तुलू होने वाला है और हमारे उर्स में 5 से 6 दिन रह गए हैं। अल्लाह ताला हमारी पूरी जमात साबरी आलिया को साबित करनी के साथ तमाम तर शऊर को हाजिर नाजिर रख के तमाम तर अकीदत, तमाम तर मोहब्बत, तमाम तर खुलूस, तमाम तर जज्बा, तमाम तर खिदमत गुजारी की सलाहियत को हुरूए कार लाते हुए अल्लाह ताला हमारी पूरी जमात को इस उर्स पाक के तमाम तर मामलात में अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। जिस लगन और शौक़ के साथ हमारी जमात ये ड्यूटियाँ देती चली आई है, उससे भी ज़्यादा लगन और शौक़ की ज़रूरत है, उससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा लगन और शौक़ हालात और वक्त का तकाजा है। अल्लाह करे कि वो हमारे अंदर पैदा हो जाए, क्योंकि जिस लेवल के हालात होते हैं उसी लेवल की रहमतें दरकार होती हैं, जिस लेवल के हालात होते हैं उसी लेवल की मेहरबानियाँ दरकार होती हैं, जिस लेवल के हालात होते हैं उसी लेवल की दस्तगीरी दरकार होती है। तो अगर हालात जो है वो बहुत हाई लेवल के हैं तो रहम भी हाई लेवल का चाहिए, मेहरबानियाँ भी हाई लेवल की चाहिए, करम नवाजियाँ भी हाई लेवल की चाहिए। तो अपनी नीयतों को बुलंद से बुलंद तरीन कर लें और अपने वजूदों को उसकी खिदमत के लिए हाजिर कर लें। इंशाअल्लाह ताला इन दोनों कामों के तुफैल अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कोई रहमत ऐसी नहीं है जो हम पर ना नाजिल हो और कोई मेहरबानी ऐसी नहीं है जो हमारा नामुकद्दर बने। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी पूरी जमात के बच्चे से लेकर बड़े तक को इस उर्स पाक की तमाम तर रहमतें नसीब फरमाए। इस उर्स पाक के तमाम तर जो इनामात हैं अल्लाह बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक का मुकद्दर फरमाए। और इस उर्स पाक के तसर्रुफ से जो रूह को खुराक मिलती है, जो रूह को इनाम मिलता है, अल्लाह करे वो इनाम बच्चे से लेकर बड़े तक हर एक का नसीब बने। और खुदा करे कि हर एक की नीयत सच्ची हो जाए, हर एक की नीयत बुलंद हो जाए, हर एक के दिल में जज्बा जाग जाए, हर एक का शौक बुलंद हो जाए कि हम इस उर्स पाक को सजाने में हमारी पूरी जमात साबरी आलिया मेज़बान है। और मेज़बान होने के नाते खुदा करे कि हर बंदे के दिल में ये ख्याल पैदा हो जाए कि चूंकि मैं मेज़बान हूँ इसलिए सारा काम मैंने ही करना है। ये ख्याल पैदा हो जाए, ख्याल ही है, काम तो सारे बांट के होते हैं, कोई किसी के हिस्से में आ गया, कोई किसी के हिस्से में आ गया। लेकिन अगर सोच और ख्याल इस नुक्ते पर होगा कि मैं मेज़बान हूँ, मैंने ही करने सारे काम, फिर उसका लुत्फ़ कुछ और हो जाता है, उसका लुत्फ़ कुछ और हो जाता है, उसके समरात कुछ और हो जाते हैं। अल्लाह करे कि यही नीयत, यही शौक़ हमारा खासा बन जाए। अल्लाह ताला हमारी गलतियाँ कोताहियाँ माफ़ फरमाते हुए जो दोस्त हमारी जमात के हाजिर हैं अल्लाह उन पर भी रहम फरमाए, जो गैर हाजिर हैं अल्लाह उन पर भी रहम फरमाए। और जो मेहरबानियाँ खुदा की ज़ात की तरफ से हमारा मुकद्दर है, क्योंकि ये महफिल खालिस्तन खुलूस नीयत के साथ सजाई जा रही है, इसमें कोई किसी की गर्ज नहीं है, कोई किसी की लालच नहीं है, कोई किसी की ज़ाहिरी तमन्ना नहीं है, खालिस्तन अपने महबूब की रज़ा के लिए और अपने महबूब के कानून को के प्रचार के लिए, अपने महबूब के दीन के प्रचार के लिए, अपने महबूब के तरीक़ेकार को ज़िंदा रखने के लिए और अपने महबूब की शान को और बुलंद करने के लिए और अपने महबूब की अता की हुई मेहरबानियों को हासिल करने के लिए ये महफिल पाक का एहतमाम जो है किया जा रहा है। अल्लाह अपने हबीब का सदका हमारा आपका सबका नसीब करे। तो गुज़िश्ता सालों की तरह इस साल भी हम आज यूँ तो हमारी पूरी जमात ही मेज़बान है और पूरी जमात ही अपने आप को ड्यूटी के लिए हाजिर रखे हर वक्त कि जिसके हिस्से में जो भी काम आता है वो खुलूस नीयत के साथ उस काम को करे और शौक़ ज़ौक़ के साथ करे और आगे बढ़ के करे। इंतज़ार ना करे कि मुझे कोई काम कहा जाएगा तो फिर मैं करूँगा, बल्कि ज़ौक़ शौक़ इससे कहते हैं कि आप काम बाद में आए, आप पहले तैयार करें, काम बाद में आए आप पहले तैयार करें, इसको ज़ौक़ शौक़ कहते हैं। ये नहीं कि आपको आवाज़ें दी जा रही कि यार वो काम आया पड़ा अभी तक आए क्यों नहीं, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं, इतनी देर हो गई है। काम तो हो जाते हैं, लेकिन जो बात हम समझाना चाह रहे हैं, जो बात हम मुंतकिल आप लोगों को करना चाह रहे हैं, खुदा करे कि वो मुंतकिल हो कि इसकी जो मेराज है वो हासिल नहीं होती उस वक्त तक जब तक अपने आप को अकमल कामिल तरीके से हाजिर जो है उसकी बारगाह में नहीं रखेंगे कि हर काम से पहले मैं हाजिर हूँ कि जो काम आएगा मैंने करना है, ये तो मैंने कर लिया लेकिन इससे अगला भी जो आएगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, वो भी मैंने करना है। तो ये नीयत है, काम तो सब नहीं करने लेकिन ये नीयत है। आज हम अपने गुज़िश्ता सालों की तरह आज हम अपने कामों के लिए जो कमेटियाँ तरतीब देते हैं इंशाअल्लाह ताला आज उसी रिवायत को जिंदा रखते हुए हम आज उस कामों के लिए कमेटियाँ जो है तरतीब देंगे और अपने उस पाक के मामलात को हतमी शक्ल जो है की तरफ लेकर जाएंगे। और अगले जुम्मे को क्योंकि आने वाले जो इतवार है ये इतवार छोड़कर जो आने वाले इतवार उसको अपना उर्स मुबारक है, अगला जुम्मा जो है वो उससे 2 दिन पहले आएगा।
उर्स मुबारक से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले कह लो, क्योंकि उर्स और जुम्मे के दरमियान एक ही दिन में हफ्ता है। तो वो जुम्मा जो है इंशाअल्लाह ताला हमारी पूरी जमात जो है वो भरपूर अंदाज में हाजिर होगी, और जो ड्यूटियाँ आज जिन पर लगी हैं उन ड्यूटियों के बारे में जो काम हो गए होंगे वो रिपोर्ट भी पेश होगी, जो रह गए होंगे उनके बारे में आगे डायरेक्शन होगी कि उसको कैसे जो है वो करना है। तो अगले जुम्मे को इंशाअल्लाह ताला हम अपने तरीक़ेकार के मुताबिक कुल खाजगान चिश्त अहले बेश्त शहंशाहों का ख़त्म शरीफ दिलवाएंगे। ये हाजत रवाई के लिए अल्लाह करे कि हमारा उर्स जो है भरपूर हो और उसकी मेहरबानियाँ इतनी जो है वसी हो कि जो जहाँ बैठा उसका हिस्सा जो है वो पहुँचे, कि हर मोहब्बत करने वाले को अगर वो अपने घर में भी बैठा नहीं आ सके किसी वजह से, अल्लाह करे वहाँ भी उसका हिस्सा जो है वो पहुँचे। इस नीयत के साथ जो है वो हम कुछ शहंशाहों का ख़त्म शरीफ दिलवाएंगे अगले जुम्मे को कुल खाजगान चिश्त अहले बेश्त सरकार का। तमाम जमात जो है वो भरपूर तरीके से अपने आप को ड्यूटी के लिए तैयार कर ले, और अगले हफ्ते को अगले जुम्मे को यानी बाकायदा ड्यूटियाँ जो अपने अख्ताम को हो जाएंगी। लेकिन बहुत सारे मराहल तय कर चुके हैं, तो थोड़े बहुत रह गए होंगे वो भी अगले जुम्मे को बैठ कर तय कर लेंगे किसके ज़िम्मे क्या काम है, किसके ज़िम्मे क्या काम है। अल्लाह ताला हमें आप सबको उस पाक के तमाम तर मामलात में अपना अपना हिस्सा जो है वो शामिल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन दोस्तों ने उर्स मुबारक के लंगर में हिस्सा ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनका मुक़द्दर बुलंद से बुलंद तरीन फरमाए। जो दोस्त किसी भी वजह से हिस्सा नहीं ले सके उन तक फिर पैगाम है कि जितनी जल्दी हो सके वो अपना हिस्सा उर्स मुबारक का शामिल कर दें, ताकि उर्स मुबारक के जो काम हैं उन मामलात को आसानी से सरअंजाम दिया जा सके, और हर मामलात में हमारा भी हिस्सा जो है वो शामिल है। जो दोस्त मौजूद हैं हमारी बात पहुँच गई, जो नहीं मौजूद उन तक हमारी बात पहुँचा दीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।